Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one question is bothering the candidates time and again, and you are asking this question time and again, sir, whether vacancies will go up in RRB after amalgamation or these will go down in respect of RRB. So in this video, we will discuss some aspects that will determine the vacancies. Now, if we look at the amalgamation of RRBs or merger of RRBs, so 12 states are affected by this. In other states, there were already one RRB, so they are not affected by this process. So the state of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Jammu Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. We have seen that all banks in these states are now merged into one entity. And if we look at this, only in Andhra Pradesh, highest number of banks merged, that is 4. In UP 3, West Bengal 3, and all other states 2 banks each. So now what is the impact on vacancies and overall working of these RRBs? Now if we look at this amalgamation, so we will find the banks, those are merged or amalgamated amongst each other. They were having branches or regional offices at different districts and different places. So due to this, there is very little likelihood that these banks may close down any of the branch. So as far as branch network is concerned, this will remain intact. So the staff requirement at branch level will remain the same. Similarly, the regional offices are also located in different cities in this case. So the regional offices may also continue to function under the new umbrella. So there may not be any closure of regional offices. The only effect will happen then about the head office. If 4 banks have merged, earlier they may be having 4 different head office, 4 different chairmen, and now they will have only 1 chairman and 1 head office. Similarly, where 3 banks merged, instead of 3 head office, they will have 1 head office and 1 chairman. And where 2 banks have merged, they will have 1 head office and 1 chairman. So wherever number of head offices has come down, definitely the staff requirement at head office may come down as compared to staff requirement at more than 1 office. So the only difference that will arise is reduction of staff on account of lesser requirement of staff at head office. That is the only thing that is foreseeable. But whether this number will be very large, whether this number is very small, that will depend upon the RRB to RRB. But the real vacancies that arises in every RRB is on account of business growth and retirements and non-joining of staff in earlier selections as well as resignation. So even post-merger, even post-amalgamation, all these factors will remain intact. That means there will be staff requirement on account of retirement, there will be staff requirement on account of resignation, there will be staff requirement on account of non-joining and business expansion. So we must expect reasonable vacancies from RRBs despite amalgamation or merger. So I don't foresee any reduction of vacancies. It may be as per the requirement. Had there is no merger, what would be the vacancies, and post merger what will be the vacancies may be similar. But we cannot compare this with last year because every year the number of people retiring may be different.
Every year branch expansion plans may be different. Every year number of people resigning may be different, and every year people those who have not joined may be different. So the vacancies depends on these factors. So have a positive mindset. Vacancies will be there. Vacancies will be reasonable. You should focus on your preparation. That is my advice. God bless you all. The number we cannot calculate, but I can say that there will be reasonable vacancies in RRB. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब से एमिग्रेशन हुआ है या मर्जर हुआ है तो एक प्रश्न आप सभी लोगों के मन में आ रहा है कि सर वैकेंसीज इस साल आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी. इसको समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट समझना है कि आरआरबी में दो सेट ऑफ बैंक्स हैं इस समय. एक वो स्टेट है जहाँ पर ऑलरेडी एक ही बैंक था, उसमें तो कोई असर पड़ा नहीं मर्जर या एमिग्रेशन का. असर कहाँ पे पड़ा है? 12 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल. इन स्टेट्स में जितने भी आरआरबीज थे वो सब मर्ज होके एक स्टेट एक आरआरबी में कन्वर्ट हो गए. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बैंक मर्ज हुए हैं आंध्र प्रदेश में 4, यूपी में 3, वेस्ट बंगाल में 3, और बाकी अन्य राज्यों में 2-2 बैंक थे जो मर्ज हो गए. अब इसके अंदर ये समझने वाली बात है कि क्या इस मर्जर से वैकेंसीज बढ़ेंगी या घटेंगी. अगर हम देखें जो मर्ज एंटिटीज़ हैं, जहाँ तो मर्जर हुआ ही नहीं तो उसमें तो नेचुरल है, जैसे हर साल कैलकुलेशन होती है वैकेंसीज की, इस साल भी वैसे ही होंगी. पर जहाँ मर्जर या एमिग्रेशन हुआ है कहाँ पर वैकेंसी का फ़र्क आ सकता है. देखो, जहाँ तक ब्रांचेस का सवाल है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में थी ब्रांचेस जो मर्ज हुए हैं बैंक, तो कहीं भी मल्टीस्प्लिटी ऑफ ब्रांचेस नहीं है, इसलिए ब्रांचेस के क्लोजर का कोई स्कोप नहीं है, ब्रांचेस कंटिन्यू रहेंगी. इसी तरह रीजनल ऑफिस भी अलग अलग शहरों में थे, वो भी चलते रहेंगे, उसको भी कोई बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है. सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि जिन बैंकों में 4 बैंक मर्ज हुए, जिस बैंक में, तो वहाँ 4 हेड ऑफिस थे और 4 चेयरमैन थे. जहाँ 3 मर्ज हुए हैं वहाँ 3 हेड ऑफिस थे और 3 चेयरमैन थे, और जहाँ 2 बैंक मर्ज हुए हैं वहाँ 2 हेड ऑफिस थे और 2 चेयरमैन थे. तो एक तो वो नंबर ऑफ चेयरमैन एक हो गया सब जगह, और हेड ऑफिस मर्ज हो गया. जब हेड ऑफिस मर्ज हो गया तो जो 2 में या 3 में स्टाफ था या 4 में स्टाफ था उतना तो नहीं चाहिएगा एक में, तो कुछ स्टाफ यहाँ पर सरप्लस हो जाएगा, जो नॉर्मली होता है जब भी मर्जर होती है. मगर ये जो स्टाफ है क्या बहुत अधिक होगा जो सरप्लस हो गया या लिमिटेड होगा? संभावना यही है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो सरप्लस इसके अंदर होंगे. जो मुख्यतः वैकेंसीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं? मुख्यतः जो वैकेंसी आती हैं वो आती हैं कि एक साल में कितने लोग रिटायर होने जा रहे हैं. वो अनअफेक्टेड है मर्जर से, क्योंकि हर बैंक में जितने जितने लोग रिटायर होने थे अभी भी रिटायर होंगे. दूसरी वैकेंसीज होती हैं कि कितना ब्रांच एक्सपेंशन होना है या बिजनेस एक्सपेंशन होना है, वो अभी भी होता रहेगा, वो वैकेंसीज अभी भी आएंगी. तीसरी वैकेंसीज होती हैं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ थे, कितनों ने रिज़ाइन कर दिया उसमें से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, वो आंकड़ा हर बैंक में अभी भी रहेगा, पिछले वर्षों में भी था. और इसके अलावा नॉन ज्वाइनिंग्स जो होती हैं वो पिछले वर्षों में भी थी, इस वर्ष में भी होंगी. तो इसलिए वैकेंसीज तो आएंगी. ये मानना कि एमिग्रेशन या मर्जर से वैकेंसीज एडवर्सली अफेक्ट हो जाएंगी, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता. हाँ, इन वैकेंसीज को हम पिछले वर्ष से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल वैकेंसीज की गणना नए सिरे से होती है और वो पिछले वर्ष की वैकेंसीज पे निर्भर नहीं होती है. वो निर्भर होती है कि जो कमिंग कैलेंडर ईयर है, मीन्स जो 2026 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इस आरआरबी के अंदर कितने लोग रिटायर होंगे, कितने ऑलरेडी नॉन ज्वाइनिंग की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कितने एक्सपेक्टेड रेजिग्नेशंस होंगे और कितना बिजनेस एक्सपेंशन वो करना जा रहा है, उस पर आधारित होगा. तो मेरा मानना ये है कि रीजनेबल वैकेंसीज इस वर्ष भी आएंगी,
क्योंकि कोई कारण नहीं है कि वैकेंसीज ना आए या बहुत कम आए या बहुत अधिक आए। जो भी वैकेंसीज होंगी, जैसे हर साल का ट्रेंड होता है, उसी ट्रेंड के अंदर वैकेंसीज आनी चाहिए। क्वांटिफाई नहीं आप कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज होंगी, क्योंकि क्वांटिफिकेशन तो बैंक्स ही करेंगे अपने डिफरेंट प्रोसेस से। कुछ बैंकों में जहां ये मर्जर नहीं हुआ है, जिन स्टेट्स में, वहाँ वो ऑलरेडी एक्सरसाइज चली रही होगी, और जहां मर्जर या एमिग्रेशन हो गया है वहाँ 1 मई 2025 के बाद नए सिरे से ये कैलकुलेशन हो जाएगी और वो आरआरबीज को, आईबीपीएस को इंटीमेट हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है। आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए आरआरबी एग्ज़ाम की। कैसे तैयारी करनी है इस पे हम वीडियोस डाल रहे हैं, उसको आप देखते रहें और तैयारी करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।